Good morning, everyone. I, Arushi Gupta, extend a very warm welcome to everyone as we continue our journey through the Might Inspire series, Season 1, an initiative that celebrates extraordinary individuals whose stories remind us that limitations exist only in our minds. It's my absolute honor to welcome a living example of resilience and determination, Mr. Chandeep Singh, an internationally acclaimed para-athlete who continues to redefine the meaning of courage. Born and brought up here in Jammu, his story is one of extraordinary grit and grace. At just 11 years old, he met with a life-altering accident, an 11,000 volt electric shock that took both his arms. But what could have been the end of a childhood dream became the beginning of an exceptional journey. He refused to be defined by his circumstances. Instead, he redefined them. Through sheer hard work and an unbreakable spirit, he not only walked again, but he ran, skated, and conquered the world. Mr. Chandeep holds a world record in paraskating, completing 100 meters in just 13.95 seconds, the world's fastest. His passion didn't just stop there. He went on to win silver at the 9th World Para Taekwondo Championship in Istanbul, becoming India's first ever medalist at that global stage. He has also represented India in para-swimming, making him one of the only few multidisciplinary para-athletes of the entire nation. His achievements have earned him national as well as international recognition, from the Hindustan Times 30 Under 30 award to being featured as one of India Today's top 6 heroes of India. He has been honored by numerous organizations for his courage, innovation, and advocacy for persons with disabilities. Today, he joins us not just as an athlete, but as a messenger of hope, a reminder that no dream is impossible if pursued with purpose. Before we hear from him, let's take a moment to watch a very short video that captures his extraordinary journey, a story of courage, determination, and unyielding spirit of never giving up. Are joined by our esteemed moderator for today, Professor Ajay Khajuria, Professor of Practice at MIT. He is a seasoned professional with over 25 years of experience across sales, marketing, consulting, and academia. Before joining MIT, he held leadership roles in telecom and brand management sectors and continues to work with leading organizations as an advisor and a mentor. He is also the author of Jammu, a land of heritage and legends, and a co-host of Tavi Tales, a cultural podcast celebrating Jammu's heritage and inspiring stories. With his blend of corporate experience, academic passion, and cultural engagement, he brings valuable perspectives to every conversation. And now, continuing this zeal, I invite Mr. Chandeep Singh and Professor Ajay Khajuria onto the stage to lead today's interactive session. Good morning, Chandeep ji. Good morning, sir. कैसे हैं आप? All well. Good morning, students. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Well done. Hi, this is what MIT stands for. Please. Hi, यहाँ का था, वहाँ का नहीं था. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. आज जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और डिस्कशन वी कैन से जो हमारे चंदीप जी के साथ है, जो हमारे जम्मू की एक इंस्पिरेशन है, उसके लिए जोश में आना ज़रूरी है क्योंकि ये खुद इतने जोशीले हैं, इतना जोश है, इतना जज्बा है और इतनी जुनून है. आज डिस्कशन शुरू करने से पहले जो पूरी इंस्पिरेशन से भरी है, एक बहुत ही सुंदर लाइनें, एक शेर मनीष तालिब जी एक लेखक है, स्पेशली उन्होंने चंदीप जी के लिए लिखी है. मुझे हाथ उठाने की जरूरत ना थी, मुझे हाथ उठाने की जरूरत ना थी, मेरे कदमों में झुकती थी कहकशां.
कहकशां कहते हैं हम यूनिवर्स को, कहकशां हम कहते हैं वर्ल्ड को, गैलेक्सी, जो भी आपको लगता है, पूरी दुनिया। मुझे हाथ उठाने की जरूरत ना थी, मेरे कदमों में झुकती थी कहकशां, मेरे हौसलों की बुलंदी को देखकर सजदे में झुकता है ये आसमां। एप्रोप्रिएट है आज के हमारे गेस्ट हैं जो माइट इंस्पायर सीरीज सीजन 1 के एपिसोड 2 को जिन्होंने आज यहां पे सुसज्जित किया है। चंदीप जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे इंस्पिरेशन है जिनकी डिक्शनरी के अंदर या जिनके शब्दकोश में इम्पॉसिबल जो है वो वर्ड भी आके इनको बोलता है, चंदीप जी आई एम पॉसिबल। इन्होंने दुनिया में जम्मू का, देश का लोहा मनवाया। और आज हम शुरू करते हैं डिस्कशन चंदीप जी के साथ, जिनको मैं नाम देना चाहता हूं अनस्टॉपेबल इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। Chandip ji, we are honored that you have spared time for us to share your journey, to share your experiences with the bright students of MIT. और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है। सो चंदीप जी, वी स्टार्ट विद, जिंदगी कभी कभी एक पल में बदल जाती है। और जब वो इलेक्ट्रिक शॉक का इंस्टेंस हुआ तो आप उस समय 11 वर्ष के थे और अचानक ही सब कुछ बदल गया। लेकिन उस बदलाव को कई लोग नेगेटिव में ले जाते हैं, बट एक आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसको अपनी तकदीर बनाया। रिक्वेस्ट है आप उस किस्से को अगर शेयर करना चाहते हैं जो आपके लिए और जम्मू के लिए और देश के लिए गेम चेंजर था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माइट की पूरी टीम, आपका शुक्रिया था जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी पल पल में चेंज होती है, एवरी सेकेंड देयर इज़ अ न्यू चांस, देयर इज़ अ न्यू लाइफ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था स्टार्टिंग से। मेरे लिए कह लो या मेरी फैमिली में जो मैं खुद का जो मेरा सफ़र रहा है ना, इट इज़ ऑलवेज आई एम लाइक अ मैग्नेट, कि मेरा इंसिडेंट्स के साथ ना कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, वो स्टार्टिंग से चल रहा है। जैसे जैसे वो ज़िंदगी चल रही थी, बढ़ रही थी, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, वो इंसिडेंट बड़े होते जा रहे थे। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, एक टाइम था कभी मेरे मतलब खेलने कूदने का शौक बचपन से था कि कभी कुछ, क्योंकि पंगेबाज स्टार्टिंग से था। आई वॉज अ नॉटी चाइल्ड फ्रॉम द बिगनिंग। स्कूल में मतलब चंदीप सिंह का नाम होता था कि चंदीप सिंह है स्कूल में कोई। तो लाइफ स्टार्ट हुई, लाइफ एक बारी ट्रैक पे आना शुरू हुई तो कभी मेरे लिप्स पे स्टिचेस आ गए, कभी मेरे हेड पे स्टिचेस आ गए। मतलब टेक द कोई भी बॉडी पार्ट का आप नाम ले लो, ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे मेरे बॉडी पे स्टिच नहीं होंगे। तो एक इंसिडेंट हुआ, मैं सेकंड फ्लोर से गिर गया। एक साइड पापा की सर्जरी चल रही थी और एक साइड हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इसका अंदर पूरा ब्लास्ट हो चुका है। तो 4th-5th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, उससे रिकवर हुआ, गॉड ने उससे निकाला। उसके बाद 8-9 महीने के बाद पानी की टंकी में गिर गया। किसी के घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो वहाँ पे हम सारे खेल रहे थे। तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट मतलब पानी के अंदर रहा मैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो 4 से 5 मिनट के बाद देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सो 10 से 15 मिनट में वहाँ पे पानी में रहा, बट वहाँ से भी सर्वाइव होके निकला। फिर ज़िंदगी में और इंसिडेंट्स हुए, बट फिर आया 2 जनवरी 2011 का दिन, जिसने मतलब टोटली लाइफ बदलने का, मतलब कहते हैं ना कि पल पल लाइफ बदलती है, वो एक पल था जिसने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी। क्योंकि इंसिडेंट से पहले आई वॉज लाइक अ नॉर्मल किड, कि अपना काम खुद करना, कहीं जाना है, कुछ खाना है, पीना है, दोस्तों के साथ आगे पीछे सब फुल्ली इंडिपेंडेंट। बट 2 जनवरी 2011 की बात है, छत पे मैं खेल रहा था। तो जैसे ये छत खत्म हो रहा है तो उसके साथ ना हाई टेंशन वायर्स जा रही थी। तो अभी मतलब हमने नए घर पे शिफ्ट होना था, पुराना घर जस्ट हमने सेल ऑफ किया था। तो 10 दिन रह गए थे, खाली दरवाजे और बारियां लगनी थी और वी वर रेडी टू मूव। तो छत पे खेलते खेलते कैच खेल रहे थे। तो जैसे ही बॉटल और बॉल के साथ हम खेल रहे थे, तो बॉटल रेलिंग के हल्की सी बाहर गई, तो मेरा लेफ्ट हैंड उसको पकड़ने के लिए गया और वो साथ में हमारे हाथों में कड़ा होता है, तो मैंने कड़ा भी मोटे वाला डाला था। तो वहाँ पे वायर थी, वायर के साथ मेरा हाथ टच हो गया वहाँ पे। तो
1 या 2% चांसेस होते हैं कि आप सर्वाइव करोगे उस वोल्टेज को। और रेलिंग थी लोहे की, तो मेरा ना पेट पे जीन्स पैंट ही डाली हुई थी, तो उसका बटन भी लोहे का था, तो वो रेलिंग के साथ कांटेक्ट में आया। जनरली आपके जो करंट अंदर आती है ना, वो बाहर भी निकलती है, मोस्टली हाथों से या पैरों से निकलती है, बट मेरे केस में जो वहाँ पे वो बटन, बेली बटन टच हुआ तो करंट ना वहाँ से बाहर निकली, तो उसने पूरा पेट ब्लास्ट कर दिया मेरा। तो भगवान ने वहाँ पे भी हाथ रखा। हार्डली 10 से 15 सेकंड का वहाँ पे हॉल्ट आया लाइट के बीच में। मैं पीछे हुआ, जैसे ही पीछे हुआ मुझे वहाँ से जीएमसी लेके गए। जीएमसी वालों ने रेकमेंड किया कि पापा को पता था कि क्योंकि पापा बिजली डिपार्टमेंट में ही थे, तो जैसे ही पापा पहुँचे, पापा फेंट हो गए, वहाँ पे उनका बीपी टोटली डाउन हो गया। फिर से पापा, जैसे पहले हुआ, पापा एक बेड पे, मैं दूसरे बेड पे। वहाँ से रिकमेंड किया कि आप, अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप हाथ बचाना चाहते हो तो आप इसको डीएमसी लुधियाना ले जाओ। तो बिना किसी देरी के, बिना सोचे समझे हम डीएमसी निकल गए उसी रात को। तो जनवरी 2011 की बात कर रहा हूँ, तो फॉगी सीज़न, बहुत ज़्यादा धुंधें वगैरह होती हैं, तो 4-5 घंटे का रास्ता था, हम 8-9 घंटे में वहाँ पहुँचे। ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह सब रेडी थे, तो पहुँचने की देर थी और ऑपरेशन होना था। बट जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया, उन्होंने बोला कि किडनीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, उसके बाद आपके शुगर लेवल, ब्लड लेवल ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, सो हम ऑपरेशन आज नहीं कर सकते। तो उन्होंने पहले बोला कि डायलिसिस होंगे। तो वो ऑपरेशन जो उस दिन होना था 2 तारीख रात को या 3 तारीख सुबह होना था, वो 6 या 7 दिन के बाद हुआ, क्योंकि उससे पहले 2 से 3 डायलिसिस हुए। उन्होंने मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया। तो 8 दिन के बाद मेरी पहली सर्जरी हुई, उसमें उन्होंने हैंड्स कट ऑफ किए। मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे आसपास। इन्फेक्शन वहाँ पे रुकी नहीं, उसके 4 से 5 दिन के बाद फिर से सर्जरी हुई, एल्बो से उन्होंने एम्पुटेट किया, इन्फेक्शन वहाँ पे भी नहीं रुकी। फिर उन्होंने लास्ट, क्योंकि सर्वाइवल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जान बचनी चाहिए, बाकी डॉक्टर्स बाद में देखेंगे। तो लास्ट उन्होंने फिर शोल्डर से एम्पुटेट किया। शोल्डर से एम्पुटेट करने के बाद मेरा पेट रिकन्स्ट्रक्ट किया, जब थोड़ी सी रिकवरी हुई, क्योंकि पेट भी पूरा ब्लास्ट था, तो मेरे थाई से स्किन निकाल के उन्होंने वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करके पूरा रिकन्स्ट्रक्ट वापस मेरा पेट किया। 2 से 3 महीने डीएमसी लगाए, फिर वापस जम्मू में आया। तो वो एक पल था जिसने मतलब लाइफ थोड़ी सी मेरी चेंज कर दी, क्योंकि इसके बाद एक टाइम आ गया था कि मैं फुली डिपेंडेंट था, छोटी सी छोटी चीज़ पे भी और बड़ी से बड़ी चीज़ पे भी। क्योंकि कुछ समय, स्टार्टिंग के कुछ महीने ऐसे होते हैं कि ना कुछ समझ लगता है ना कुछ होता है। तो मेरे साथ भी वही था कि छोटी से छोटी चीज़ पे भी, अगर पानी भी पीना है, अगर कहीं आगे पीछे बाहर भी जाना, तो वो सारा डिपेंडेंसी पे आ गया था, जो मैं पहले खुद इंडिपेंडेंटली करता था। चंदीप जी, बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। शब्द कभी मेरे पास, मैं अपने को शब्दों का धनी मानता हूँ कि बहुत सारे वर्ड्स मेरे पास हमेशा रहते हैं, बट आपका ये इंस्टेंस रियली रियली इमोशनल कर गया है। और आज आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आप हर एक इंस्टेंस में 1 या 2% उन लोगों में से हैं जो सरवाइव किए, चाहे पानी की टैंकी में गिरे या इतना हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स आई। हैट्स ऑफ टू यू कि आप अपनी कहानी सुनाने के लिए सामने बैठे हैं, और हर दिन कितने हज़ारों लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं, आपको इस बारे में शायद पता भी ना होगा। एंड आई रिक्वेस्ट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर सुपर हीरो। जब ये इंसिडेंस हुआ, जैसे कि आपने बताया कि जो आपके एल्बो से ऊपर और उसके बाद हाथ को जो है शोल्डर जो लॉस हुआ, ये सब उस समय दोस्तों की, पेरेंट्स की और स्कूल टीचर्स या प्रिंसिपल की क्या भूमिका रही आपको वापस उसी मैदान में लाकर खड़ा करने के लिए जिस मैदान से आपने फतेह किया? हॉस्पिटल की बात है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। तो 15-20 दिन हो चुके थे, मतलब हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए, ना नीचे कदम रख पा रहा था, ना कुछ हो पा रहा था। तो लास्ट सर्जरी हुई थी मेरी, तो आपको ना एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसकी भी कुछ ड्यूरेशन होती है कि इतनी देर के बाद आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपको नहीं भी करेंगे, वो हल्का हल्का होश आना शुरू होता है। तो लास्ट मेरी सर्जरी थी, जो मेजर सर्जरी लास्ट वाली मेरी हो रही थी, तो उसके ना जब ऑपरेशन ख़त्म होने वाला था, उससे थोड़ी देर पहले ना मैं हल्के सी कॉन्शियसनेस में आ गया था। तो उस टाइम मेरे को आइडिया लगा कि मेरे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया,
रिकवरी वार्ड में गया, क्योंकि आईसीयू से पहले रिकवरी वार्ड होती है, तो रिकवरी वार्ड में शिफ्ट हुआ। आई स्टिल रिमेंबर मम्मी पापा वहीं थे, तो मम्मी पापा को मैंने पूछा, तो पूछने के बाद उन्होंने सब कुछ बताया, तो खूब रोया, 1 1.5 2 घंटे में खूब दबा के रोया। बट घर वालों ने भी एक चीज़ बोली कि संदीप जो हो चुका है ना, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, बट जो होने वाला है एटलीस्ट वी कैन मैनेज दैट। तो उन्होंने ये लाइन बोली और उस टाइम मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि संदीप आज रो ले जितना रोना है, इसके बाद इस चीज़ के लिए नहीं, जिंदगी रुलाती रहे रुलाएगी, कोई बात नहीं, सह लेंगे, बट इस चीज़ के लिए रोना नहीं वापस कभी। तो आई स्टिल रिमेंबर वो लास्ट दिन था। उसके बाद जम्मू आया वापस, और अगले दिन ही मेरे को ना मेरे प्रिंसिपल मैम का कॉल आता है, संदीप आप स्कूल आओ। ठीक है, मैं मैम से मिलने गया वहाँ पे, तो मैम ने मुझे जैसे हमारी क्लासेस होती हैं क्लासरूम में ले गए, दोस्तों से मिलाया। वापस आते टाइम उन्होंने मुझे एक रूम दिखाया, कहते हैं ये एमआई रूम हमने आपके लिए रेडी किया है, यहाँ पे 2 अटेंडेंट्स है आपके लिए, कि अगर आपको स्कूल टाइम में किसी भी चीज़ की नीड पड़ती है तो दे विल हेल्प यू आउट। तो मार्च का टाइम था जब मैं जम्मू आया था, तो मैम ने बोला संदीप अगर मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट पास कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप पेपर दो, एग्ज़ाम की तैयारी करो और उसके बाद देख के क्वालिफाई करो। तो मैं ठीक है मैम, डन है। तो 10 से 15 दिन मिले मेरे को, मैंने फिर से तैयारी की, और तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम्स दिए और एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके वापस 8th स्टैंडर्ड में एडमिशन ली। तो जैसे ही कॉलेज में पहुंचा, स्कूल में पहुंचा, 8th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ, तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड भी मानता हूँ और लकी इनफ मानता हूँ कि जो मेरा सर्कल है ना, वो स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव भी रहा है और अच्छा भी रहा है। क्योंकि हर दिन के मेरे नोट्स होते थे, कि जैसे जैसे बच्चे अपनी कॉपियाँ तैयार कर रहे हैं, तो मेरे जो दोस्त होते थे 30 बच्चे अगर क्लास में, तो महीने की हर दिन की ना एक बच्चे की ड्यूटी होती थी कि एक कार्बन पेपर, A4 शीट, जैसे वो लिखते थे नीचे अपनी कॉपी के लगा लेते थे कि संदीप अगर घर जाके पढ़ना चाहे तो उसको डेली के नोट्स मिलते रहें। सो मुझे कॉलेज में अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, मेरे हमेशा अराउंड 2 या 3 अपने दोस्त रहते थे, कि कॉलेज टाइम में भी ऐसा रहा है, स्कूल टाइम में भी ऐसा रहा है, कि 2 से 3 ऐसे दोस्त मेरे बने हैं कि वो एंड तक साथ में रहे हैं जब तक हमारा कॉलेज या स्कूल चला है। तो वहाँ से जो अपने स्कूल वाले थे, साथ में जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, पूरा पॉजिटिव था। उन्होंने माहौल ही ऐसा बना दिया, घर की बात करें, नेवर फेल्ट कि मेरे साथ कुछ बदला है, क्योंकि ऑन अ सिंगल कॉल और सिंगल एक आवाज़ मारने की देर होती थी, एवरीवन वाज रेडी कि संदीप को कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है, सिंगल कॉल पे सारे रेडी रहते हैं। तो मेरा जो सर्कल, दोस्तों का सर्कल रहा, फैमिली का सर्कल रहा, रिलेटिव्स का सर्कल रहा, दे वर पॉजिटिव इनफ कि हो चुका है, देख लेंगे बाद की बात में, अभी जो रिकवरी टाइम है उससे रिकवर करें। सो दोस्तों और टीचर्स ने बहुत मदद की है। आई थिंक संदीप जी आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि अगर आपका परिवार आपके साथ है, अगर आपके साथ आपके दोस्त हैं, और जैसे आपने बताया आपके स्कूल टीचर आपके साथ रहे, प्रिंसिपल आपके साथ रही, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहाइंड एवरी चंदीप देयर इज अ होस्ट ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट, जो आपकी सक्सेस के वो इक्वल भागीदारी है। डेफिनेटली से उसके अंदर आपकी बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत रहती है, और कहीं ना कहीं हाथ जो है वो बैलेंसिंग के लिए काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन डिस्पाइट इन सब चीज़ों के, आपने इन सब स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। वो क्या था कि अपने को प्रूव करना था, या ये प्रूव करना था कि चंदीप जो है वो सब कुछ कर सकते हैं? मतलब जब मेरा स्पोर्ट स्टार्ट हुआ ना, मैं एक्टिव था स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में। तो इंसिडेंट से पहले आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया। अभी ना स्टेट टीम के गोलकीपर्स के ट्रायल देने थे मुझे, एक स्कूल टूर्नामेंट हुई थी उसमें से शॉर्टलिस्ट हुआ था, गोलकीपर्स के ट्रायल देने थे मुझे स्टेट टीम के। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भी कि स्टेट टीम के ट्रायल्स देने जा रहा हूँ, बट उससे पहले इंसिडेंट हो गया, वापस आए, चलो जो हुआ, 1-2 महीने निकले, 3 महीने निकले, बट जो अंदर का वो था ना कि संदीप स्पोर्ट्स वापस ज्वाइन करना है। तो एक दिन स्कूल में ही आई वॉज रोमिंग अराउंड, क्योंकि एथलेटिक्स इतना पॉसिबल नहीं था, क्रिकेट पॉसिबल नहीं था, फुटबॉल एज अ गोलकीपर वो भी पॉसिबल नहीं था। स्कूल में फ्री पीरियड था, गेम्स पीरियड चल रहा था, तो मैं स्कूल में ही आई वॉज रोमिंग अराउंड कि क्या करूं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ना स्केट्स कर रहा था। तो स्केट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हैंड्स का होता है, बैलेंस करने के लिए और स्पीड गेन करने के लिए। मैंने उससे जनरली पूछा, मैं यथार्थ उसका नाम था, तो मैंने उसको जनरली पूछा भाई हाथ पीछे रख के ज़रा स्केटिंग करके दिखाना।
तो उसने हाथ अपने पीछे रखे और स्केटिंग करके दिखाया। तो मैंने अपने आप से बात की कि संदीप, दिस सिचुएशन इज एज गुड एज योर सिचुएशन, कि अगर वो हाथ पीछे रख के कर सकता है तो बिना हाथ के भी मुश्किल नहीं होने वाली। तो बिना घर पे बताए, क्योंकि अभी नए नए आए थे, जख्म अभी अच्छे से भरे नहीं थे, तो स्टिचेस खुलने का डर होता है, क्योंकि मोर देन 100 स्टिचेस थे मेरी बॉडी पे उस टाइम पे। शोल्डर्स पे स्टिचेस, पेट पे स्टिचेस, थाई के अराउंड स्टिचेस। तो ठीक है, घर पे बिना बताए अपने सीनियर से स्केट्स बोरो किए, स्केटिंग शुरू की। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, जब चौथा महीना आया कि गिर गिर के सीखा कि अब संदीप अगर कर रहा है तो अच्छे से करना है। क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है, अगर कुछ कर रहे हो तो अच्छे से करो, बेशक वो कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज़ है या बड़ी से बड़ी चीज़ है, अगर उसको आप अच्छे से करोगे ना, देयर आर चांसेस कि यू विल बी सक्सेसफुल। घर पे गया चौथे महीने में, जी मैं ऐसे स्केटिंग सीख रहा था, अब मुझे स्केटिंग शुरू करनी है। तो देवर लाइक कि कब शुरू किया? तो फिर मैंने उनको सारा समझाया कि मैंने ऐसे स्कूल में सीनियर से स्केट्स बोरो करके स्केटिंग शुरू की थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली स्टार्टिंग से पॉजिटिव थी, तो विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे से ज्वाइन करते हैं। स्केटिंग शुरू होगी मेरी, और अपने आप से ये भी था कि संदीप अगर स्केटिंग कर लेगा कुछ भी कर लेगा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ हाथों की थी। स्केटिंग 4 बजे हमने शुरू किया, ट्रेनिंग स्कूल से आए, ट्रेनिंग पे चले गए। उस टाइम ना जो बिगिनर्स होते थे वो 4 बजे आते थे, सीनियर शाम को 6-7 बजे आते थे। तो हम जब बिगिनर्स थे, जब मैं बिगिनर था, तो जब सीनियर्स आते थे ना, तो उनका अलग सा रुतबा और होता है ना, जब कोई किसी भी अगर स्कूल के सीनियर्स हों या मैनेजर हो, मतलब कॉर्पोरेट की बात करो या ऑफिसर्स की बात करो, जब सीनियर ऑफिसर्स एंटर करते हैं तो थोड़ा और डिफरेंट होता है। तो अपने आप से उस दिन प्रॉमिस किया कि संदीप कोशिश कर, 1-2 महीने लगा, जल्दी से जल्दी बिगिनर से कन्वर्ट हो कि सीनियर टाइमिंग पे आए। तो मुझे याद है वो 2 से 3 महीने मेरे ऐसे थे कि ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन मेरे नीज ना ब्लीड कर रहे हों। कभी रोड पे गिर रहा हूँ, रोड ट्रैक्स पे, कभी अपने रिंग ट्रैक पे गिर रहा हूँ, बट ये था कि ब्लीडिंग्स चल रही हैं, बट अपने आप से प्रॉमिस था कि करना है, करना है, करना है। तो 3 महीने लग गए उस चीज़ को ओवरकम करने में, बैलेंस प्रॉपर किया, उसके बाद स्पीड हल्की हल्की गेन की, अपने आप को कन्वर्ट किया बिगनर से सीनियर्स में। सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी, 1 साल उसमें लग गया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेवल पे थे, तो मुझे उस लेवल को अचीव करना था। जो वो 1 घंटा लगा के अचीव कर रहे थे, मुझे उसमें 2 घंटे लग रहे थे। तो वापस अपने आप को उस पीक पे लेके आया कि संदीप compete करने लायक पहुंच जा, कि उनके साथ compete कर सके, क्योंकि साथ साथ में स्टडीज़ भी चल रही थी, स्टडीज़ के साथ स्पोर्ट्स भी चल रहा था, और दोनों को मैनेज करना था, मुझे ही करना था, किसी ने नहीं करना था। आप जितना मर्जी मुझे पॉजिटिव कर दो, मेरी फैमिली जितना मर्जी मुझे पॉजिटिव कर दे, इफ़ आई एम नॉट विलिंग, कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये मेरा बिलीव है कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं करना चाहता, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप वो चीज़ कर लो। अगर मैं चीज़ करना चाहता हूँ तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझे रोक दे कि ये चीज़ तू नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हुई, वापस स्केटिंग पे एक लेवल पे आया, लेवल पे आने के बाद पार्टिसिपेट करना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट लगाई सबसे पहले। डिस्ट्रिक्ट पे ये मैं बात कर रहा हूँ एबल्ड स्केटर्स के साथ, क्योंकि जो स्केटिंग थी पैरा के साथ रिकॉग्नाइज नहीं है, उसमें पैरा स्केटर्स नहीं होते। आई वॉज द फर्स्ट पैरा स्केटर ऑफ इंडिया जो उस टाइम पार्टिसिपेट कर रहा था एबल्ड बॉडी स्केटर्स के साथ। सो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप लगाई, पहली में शायद से सिल्वर आया था मेरा, उसमें सिलेक्शन नहीं हुई। फिर उसके अगले साल एक और लगाई, उसमें मेरा गोल्ड आया, गॉट क्वालिफाइड फॉर द स्टेट्स में 3 साल लगातार गोल्ड मेडल आया, बिकेम द स्टेट चैंपियन एंड वेंट फॉर द नेशनल्स। 2012 से लेके 2016 तक का ऐसा टाइम था, एवरी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, एवरी स्टेट चैंपियनशिप, एवरी CBSE नेशनल और एवरी नेशनल और स्कूल गेम्स भी, जिसमें संदीप सिंह पार्टिसिपेट कर रहा था। कईयों में जीत मिल रही थी, कईयों में हार भी मिल रही थी, क्योंकि जो कोई घर से आता है हारने के लिए कोई नहीं आता, सारे तैयारी करके आते हैं कि जीतना ही है। सो बट एक चीज़ मन में थी कि एक लेवल पे मैं आ चुका था कि संदीप अपने लिए हो गया, अब देश के लिए क्या। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन का एक ड्रीम होता है कि अगर खेल रहा है तो देश के लिए खेल, कि देश का नाम हो। बट वो स्केटिंग में चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि स्केटिंग पैरा गेम्स मतलब पैरा ओलंपिक्स या किसी के साथ रिकॉग्नाइज नहीं थी। क्योंकि उस टाइम नॉलेज भी इतनी नहीं थी मेरे को, ना ही सोशल अवेयरनेस इतनी थी हमारी पैरा गेम्स को लेके या समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ से एक फिर लास्ट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया स्केटिंग में, एज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अभी भी है वो, एसिड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अभी भी है, एज वर्ल्ड्स 100 मीटर फास्टेस्ट पैरा स्केटर, जो अभी भी कायम है, जो अभी भी चल रहा है। इट्स नॉट अभी भी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो ये स्केटिंग का मेरा थोड़ा सा सफ़र था, बट उसके बाद ये था कि
कहीं और जाना है, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, अगर इंडिया का कोड डालना है तो उसके लिए मेहनत भी दुगनी करनी पड़ती है। 2015 की एंड की बात है, मैं ना किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में आया, क्योंकि हमारा लिम्स को लेके भी चल रहा था कि लिम्स लगवाने या कैसे करना है, रोबोटिक्स का हो गया या कुछ और हो गया, वैसे चल रहा था। तो मुझे ना एक दिन कॉल आती है यूएसए से, कि पापा को कॉल आती है कि हम मतलब आपके बेटे के बारे में सुना है, तो हमें प्लीज़ बताया जाए कि हम इसमें हेल्प कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, मतलब मनी के थ्रू कर सकते हैं या किसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका खर्चा है ना दैट इज़ अराउंड 1 to 2 CR अगर रोबोटिक्स में आपको जाना है। तो पापा ने एक चीज़ उनको बोली कि वी डोंट रिक्वायर मनी, हमें इस टाइम मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस टाइम जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी कहाँ की है, कि सबसे अच्छे लिम्स कहाँ पे लगेंगे। हमें कोई आइडिया नहीं है वो डॉक्टर कौन है कौन नहीं है। तो फिर उनके साथ थोड़ी देर के बाद मैं कॉन्टैक्ट में आता हूँ, वो दिसंबर में इंडिया आ रहे थे, तो हमारा प्लान बना मिलने का। तो मुझे चंडीगढ़ जाना था उनको मिलने के लिए। तो जिस दिन मैंने जाना था उन्होंने एक दिन पहले अपनी प्रोफाइल पिक चेंज की, जिसमें उनके साथ थे हमारे लेट सरदार मिल्खा सिंह जी, द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ इंडिया। सो मैं जनरली उनसे पूछा कि ये आपके कौन है, तो शी सेड ही इज़ माई फादर। मैं ओके, तो मैं कल ये भी मिलेंगे, तो शी सेड कि आपको मिलना है, मैं हाँ जी, तो कहते कोई नहीं मिल लेंगे। तो वहाँ पे गए, उनसे मिले, एंड उनकी मतलब उनकी आपने मूवी देखी होगी, माइट भी सबने मूवी देखी होगी, तो मूवी में ना 30 से 40% उनकी स्टोरी होगी जो उन्होंने बताई है, अदरवाइज उनकी स्टोरी उनके मुंह सुनी, दैट इंस्पायर्ड मी। एंड 2015-16 में ही बिकेम माई फर्स्ट मेंटोर, फर्स्ट ऑफिशियल स्पॉन्सर, कि जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया उस टाइम पे। उन्होंने मुझे फिर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से मिलाया। उनसे मिलने के बाद पता चला कि संदीप, डिसेबिलिटी की कैटेगरीज में आगे गेम्स डिवाइडेड है, कि एक डिसेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि हर गेम में हो, कि आपकी डिसेबिलिटी में लिमिटेड गेम्स होंगी। मेरी में 2 निकली उस टाइम पे, फर्स्ट स्विमिंग थी, सेकंड टाइक्वांडो था। स्विमिंग उस टाइम मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगी, मैं संदीप अभी स्विमिंग नहीं करते, अभी टाइक्वांडो करते हैं, क्योंकि इसमें आपको हाइट की भी बेनिफिट मिलेगा, पावर का भी मिलेगा, क्योंकि हाइट भी ठीक थी और ऑलरेडी स्पोर्ट्स कर रहे, तो इट विल हेल्प मी। स्केटिंग पूरे पीक पे आके छोड़ी मैंने, मतलब अपनी लाइफ के पीक पे आके मैंने स्केटिंग छोड़ी और फिर से एक ज़ीरो से एक गेम स्टार्ट करनी थी। मैं कोई नहीं चाहती, डिफिकल्टी होगी बट एटलीस्ट जो पाथ आपने सोचा है उस पर चलोगे तो सही। कम से कम जम्मू आया, पता किया कि कोच कौन है, कि किन के थ्रू ट्रेनिंग हो सकती है मेरी। सो जम्मू आए, एक नाम सबके मुंह से सुना गया, जो सब बता रहे थे कि अतुल पंगोत्रा नाम है एक, श्री अतुल पंगोत्रा जी। तो मैंने उनसे उनका कांटेक्ट निकाला, उनसे स्टेडियम मिलने गया, तो उनसे जैसे ही मिला तो ही वो सो पॉजिटिव कि संदीप करते हैं, लेट्स डू इट। 15-16 की बात है, 16 में मैंने रिकॉर्ड सेट किया, 16 में ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी टाइक्वांडो की। तो टाइक्वांडो की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो फिर से 1 से 1.5 साल का प्रोसीजर था ही था, क्योंकि स्केटिंग टोटली डिफरेंट गेम, टाइक्वांडो बिल्कुल ही डिफरेंट गेम है। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मेरी, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 100 पे पहुंचने में 1.5 साल लग गया मेरे को, बट लकीली और सर की मेहनत रही, मैंने जैसे सर ने कहा हमने किया। तो 1.5 साल के बाद मैं फिर से उस लेवल पे आया कि पार्टिसिपेट कर सकूं। राइट नाउ अगर अभी तक की बात करूं, 6 टाइम डिस्ट्रिक्ट, 6 टाइम स्टेट एंड नेशनल चैंपियन इन टाइक्वांडो, मतलब ऐसी लगातार 2015-16 से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, स्टेट में भी कर रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट में भी कर रहा हूँ, नेशनल में भी कर रहा हूँ। 2018 में नेशनल चैंपियन बना। अब ऑब्वियसली नेशनल चैंपियन बन रहा हूँ तो थोड़ी सी खुशी मेरे को भी अंदर थी कि संदीप अब कॉल आएगा, कि अब फ़ोन आएगा कि संदीप यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो फेब या मार्च की बात है, कॉल आता है फेडरेशन से कि संदीप ऐसे आगे इस साल की ये 3 टूर्नामेंट्स होने वाली हैं, तो एज सच यू आर द गोल्ड मेडलिस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपका नाम आगे रिकमेंड करें इसके टूर्नामेंट्स के लिए। मैं सर डेफिनेटली, मैं तो वेट इसी चीज़ का कर रहा था कि ये कॉल कब आएगा मेरे को। सो 2018 में मैंने पहला अपना इंटरनेशनल लगाया काठमांडू में। तो नेपाल में मेरा पहला इंटरनेशनल था जिसमें मेरा एक गोल्ड आया अपने देश के लिए। उसके बाद आई वेंट फॉर द एशियन चैम्पियनशिप 2 महीने के बाद, जिसमें इन माई कैटेगरी आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर, फर्स्ट पैरा टाइक्वांडो एथलीट फ्रॉम जम्मू कश्मीर जिसका एशियन चैंपियनशिप में टाइक्वांडो में गोल्ड मेडल था। और साथ ही मैं दूसरी कैटेगरी में फाइट करते हुए, जो यहाँ पे वो वीडियो चल रही थी ना, वो दूसरी कैटेगरी की थी, वो मेरी कैटेगरी की नहीं थी। तो उस कैटेगरी में भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, जिनके एक हाथ पूरा था और एक हाफ आर्म था, उनके साथ फाइट करते हुए भी।
अदरवाइज मेरा इसमें भी गोल्ड होता, क्योंकि थोड़ी सी चालाकी खेल गया वो बंदा मेरे साथ। नए नए टूर्नामेंट में आए थे तो इतना रूल रेगुलेशंस का ना आइडिया नहीं था मेरे को। तो हमारे में क्या होता है कि चेस्ट पे सेंसर्स होते हैं, फेस पे सेंसर्स होते हैं, तो हमारे पैरा वाले फेस पे टच नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क ऑफ इंजरी होता है, बहुत कुछ होता है। जनरल कैटेगरी में आप फेस पे खेल सकते हो और चेस्ट पे खेल सकते हो, बट जो मेरी यहाँ पे कोचिंग हुई थी वो हुई थी इस हिसाब से कि पूरा ऊपर नीचे मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना रूल्स का आइडिया नहीं था। मेरी एक किक गलती से उठ गई, मुझे वहां पे उन्होंने बता दिया कि फेस किक नहीं उठाना। मैंने बड़ा ट्राई किया नीचे रोकने का, रोक लूं, पर रुकी नहीं, वो हल्की सी उसके ना कान की साइड से निकल गई, टच नहीं हुई, जस्ट निकली थी। तो वो पुराना प्लेयर था भी कोरिया का, और गेम भी कोरिया की है, तो वो रूल रेगुलेशन के थोड़े ज़्यादा उनको ज़्यादा आइडिया था। वो जनाब वो रिंक में लेट गए नीचे। मैं क्या हो गया इसको, मैं इतनी ज़ोर से तो पड़ी नहीं है, तो वो जनाब नीचे लेट गए। मैं ठीक है, मुझे रेफरीज ने कॉर्नर कर दिया कि थोड़ा साइड हो जाओ, देखते हैं क्या हो रहा है। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, वो नहीं उठा तो नहीं उठा। 4-5 मिनट के बाद कॉर्नर रेफरीज थे हमारे, चारों अंदर आए, उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। रिंग के अंदर ना स्ट्रक्चर आ चुका था कि जिसपे उसने लेट के जाना था। जैसे मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, वो जनाब खड़े हुए निकल गए। मैं आपको ये दिख गया कि वो लेट गया, वो ये नहीं दिखा कि जैसे डिस्क्वालीफाई आपने किया और वो चल के निकल गया बाहर। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो ब्रॉन्ज और गोल्ड लेके वापस इंडिया आए, और 2 महीने के बाद फिर से गए किम योंग कप खेलने के लिए कोरिया में। मेरी कैटेगरी फिनिश की मैंने गोल्ड के साथ। अब दूसरी कैटेगरी का सेमी खेला, क्वार्टर खेला, फाइनल्स में था, और लकीली फाइनल में वही जनाब मिल गए मेरे को जिनके साथ ब्रॉन्ज का मेरा वो हुआ था। पहला राउंड निकला, पहला जीत लिया, सेकंड राउंड वो विन कर गया, थर्ड राउंड टाई हो गया। अब दोनों फिर फंस गए। अब होना था कि अब होगा डिसाइडर की टाइम है, मतलब एक मिनट का राउंड मिलेगा आपको। 1 मिनट के राउंड में जिसने पहला पॉइंट निकाला वो जीतेगा। रेफरी कोरिया के, साइड रेफरीज कोरिया के, मॉनिटर्स पे कोरिया वाले, जो बंदा खेल रहा है वो भी कोरिया का। मैं चंदी ध्यान रखना, पार्शियलिटी होने वाली है। राउंड स्टार्ट हुआ, आई वेंट फॉर द किक उसके ना बिल्कुल चेस्ट गार्ड के बॉटम पे लगी, तो पहला फाउल, मैं चंदीप हार गया। लकीली रूल ऐसा था कि फाउल पे आप नहीं जीत सकते, फाउल पे आपको पॉइंट पे आप जीत नहीं सकते, आप जीतोगे पॉइंट निकाल के जीतोगे। उसने फिर वो, मैं बच गया वहां पे, 1 अप हो गया, मेरा 0 था। खेलते खेलते किक लगी, सेकंड पॉइंट मेरा आया, तो आई वॉन दैट टूर्नामेंट। तो उस साल मेरे मतलब 2018 की मेडल टैली थी, 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, एंड आई बिकेम द वर्ल्ड रैंक नंबर 3 एथलीट फ्रॉम द इंडिया। वापिस आए, स्टेट अवार्ड के लिए भरा। पिछले 2-3 सालों से लगा हुआ था ट्राई करने के लिए कभी, बट हो नहीं पा रहा था किन्हीं कारणोंवश, बड़े होते हैं उसमें आपको पता ही है। तो बड़ा भरा मैंने इस बारी भी कोशिश था कि हो जाए, एंड फाइनली 2019 में अनाउंस हो गया, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन एनी कैटेगरी में। अगर स्पोर्ट्स की बात कर लो या आर्ट्स की बात कर लो या किसी भी कैटेगरी में बंदों को दिए जाते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सो मेरे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में देयर 15 पर्सन्स, जिसमें सबसे पहला रैंक मेरा था स्टेट अवार्ड के लिए। एंड जैसे ही ये ख़त्म हुआ, ये खुशी उतरी नीचे, खुशी उतरने के बाद फिर से टेंस माहौल आ गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई हमारी। ओलंपिक्स, सबने नाम सुना ओलंपिक्स का? ओलंपिक्स के बाद जो सबसे टफेस्ट कंपटीशन कंसीडर किया जाता है, दैट इज़ वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में खाली कॉमनवेल्थ कंट्रीज खेलती हैं, एशियन गेम्स में खाली एशियन कंट्रीज खेलती हैं, बट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 90+ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं मिनिमम। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बारी आई, तो सर से भी इंफॉर्मेशन मिली, आगे पीछे से इंफॉर्मेशन मिली कि आज तक वर्ल्ड में ना जर्नल में मेडल है ना पैरा में मेडल है। जब से गेम स्टार्ट हुई है इन द हिस्ट्री आज तक मेडल नहीं आया कभी। सो तैयारी शुरू की, जैसे कोच साहब ने बोला दिन लगाना है, सुबह लगानी है, शाम लगानी है। ना सुबह देख रहे थे ना शाम देख रहे थे हम, और ट्रेनिंग शुरू होगी हमारी। कभी कुछ टूट रहा है, कभी कोई मसल फट रहा है, मतलब पेन है, बट ये है कि दिख रहा है कि गोल्ड पे एम है कि वर्ल्ड का गोल्ड लाना है, उसके लिए पेन मैटर नहीं कर रही मेरे लिए। सो तैयारी शुरू की वापस, एक बारी 2 से 3 महीने वापस लगाए, वेंट फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, क्वार्टर्स को क्वालिफाई किया, सेमी क्वालिफाई किया, और लास्ट फाइट मेरी फंस गई रशिया वालों के साथ। तो जो वो रशियन था, ही वॉज ऑलरेडी 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। तो वो पिछले 6 से 7 साल, 6 साल मतलब हर 2 साल में एक बारी होती है, तो पिछले 12 साल से वो खेल रहा है, और मेरा पहला साल है। मुझे हार्डली साल भी 2 हुए ट्रेनिंग करते हुए। हमारी फाइट चली 5 मिनट का, कुछ रूल्स चेंज हुए थे शायद से,
5 मिनट के नहीं, उस टाइम 3 राउंड थे हमारे, 1.5 मिनट के राउंड थे। पहला मैं जीत गया, दूसरा वो जीत गया, तीसरा राउंड हमारा हो गया कि मतलब इतनी इंटेंस हुई कि वी वेंट फॉर 36 पॉइंट, कि 36 पॉइंट पे हम चले गए थे। इतनी मार पिटाई हो रही थी आपस में दोनों की। तो बट उसको वो भी जीतने आया था, तो मेरा फॉर्चुनेट उस साल मेरा मेडल नहीं था, बट बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया जिसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल था उस साल के लिए। एंड दिस वॉज हिस्ट्री क्रिएटेड। तो जैसे ही वापस आया तो कॉलेज में था उस टाइम में, इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई वॉज डूइंग। तो वापस आया जम्मू में, थोड़ी सेलिब्रेशंस वगैरह हुई, तो मुझे ना जैसे हमारे कुछ बच्चे कोचिंग्स वगैरह ले रहे थे उस टाइम पे या कुछ कर रहे थे, तो वो ना अपनी कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे मेरे को कि चंदीप ये देख आज तेरे बारे में पढ़ाया गया है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन पैराथलीट जिसका उसमें मेडल आया, और वो भी यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, केएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वो जीके का सवाल बन गया कि करंट अफेयर्स में भी आ गया। एंड ऑब्वियसली उन्होंने फिर वो मुझे और खुशी हुई थोड़ी सी, मैं ठीक है चंदीप चल कुछ तो अच्छा कर रहा है। तो इससे वापस आया, कॉल आती है स्टेट बोर्ड में से, जो हमारा जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है, हमारी स्टेट का स्टेट बोर्ड होता है, कि चंदीप क्या आप अपनी डिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं थोड़ी सी फ़ोटो के साथ। मैंने भेजी। उस साल जो 8th क्लास की बुक्स नई रिवाइज हुई, तो उसमें जो सिविक्स का चैप्टर था उसका लास्ट चैप्टर था, उसमें पेज नंबर 140 आया गया, उसमें मेरी फ़ोटो के साथ मेरी पूरी डिस्क्रिप्शन मैंशनड है, अभी तक चल रही है। तो और साथ में उनके फाइनल एग्जाम्स में भी वो क्वेश्चन आते हैं, और जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो स्टेट बोर्ड के हैं, तो वो भी भेजते हैं कि भैया आज आपके बारे में क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम्स में। मैं ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप से आया था, तो मेरी ना इंजरी होगी, मेरा पैर इंजर्ड था, नी इंजर्ड थी, बैक इंजर्ड थी, तो डॉक्टर ने बोला अभी नहीं कर सकते, आप रेस्ट पे रहो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, रेस्ट पे डॉक्टर ने फिर डाल दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, बट स्पोर्ट्स वालों का ना मिची होती है अंदर से कि नहीं भाई रेस्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। तो उस टाइम एक गेम सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट गेम निकली थी स्विमिंग। मैं चंदी चल ट्राई करते हैं। डीसी सर थे उस टाइम जम्मू हमारे, रमेश सर, राइट नाउ डिफकॉम जम्मू, तो उनसे मिला मैं। उन्होंने मुझे आईजी सर के साथ मिलाया, जो उस टाइम जम्मू जोन के आईजी सर थे, एमके सिन्हा सर। तो उन्होंने मिलाया, क्योंकि मुझे पता था प्राइवेट पूल वाले हाथ डालने से रहे, क्योंकि अपने पे कोई रिस्क नहीं लेता। तो आईजी सर से मिला, उनको मैंने अपने बारे में सारा बताया। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि चंदीप विल यू एबल टू डू इट, क्या आप कर सकते हो? 1 सेकंड भी नहीं सोचा, मैं यस सर मैं कर लूँगा। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया, कोचेस को फ़ोन घुमाया, जो उनके बेसिकली मेस में ना, इनका जो ऑफिसर्स मेस है उसमें अपना पूल होता है, तो उन्होंने बोला कि चंदीप आज शाम को ज्वाइन करेगा, अब आपका काम रहा सिखाना। आई वेंट, सर से मिला, लकीली वो भी पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव था ही था, वो मेरे से ज़्यादा पॉजिटिव, चंदीप कर लेंगे। पहले दिन डरते डरते उतरा, 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, आई वॉज एबल टू फ्लोट करना स्टार्ट किया। बैक स्ट्रोक से स्टार्ट किया था मैंने, बेसिकली बैक स्ट्रोक ब्रेथ करनी स्टार्ट की। तो आई गेस 2 या 3 महीने बीते थे, 10 ब्रेथ करता था मैं, जो आई गेस 13 से 14 मीटर होती है एक ब्रेथ, क्योंकि जम्मू में जो बड़े पूल हैं वो 25 मीटर के, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ब्रेथ करना स्टार्ट किया, उससे 1-2 महीने और बीते, ब्रेथ पे थोड़ा सा होल्ड बना, तो मैंने लेंथ स्टार्ट की। आज भी याद है, पहली लेंथ क्रॉस की, 4 मिनट का रेस्ट किया, फिर अगली लेंथ होती थी, मतलब वो भी 10 या 12 लेंथ होती थी। फिर अपने आप में वो था कि चंदीप कर रहा है तो अच्छे से कर ले, क्या हो जाएगा, अगर करना ही है, टाइम बिता ही रहा है, 1-2 घंटे यहाँ लगा ही रहा है, तो अच्छे से कर। फिर अपने आप से वही प्रॉमिस किया। फिर ऊपर जिम था हमारा, जिम करना, पहले 1 घंटा जिम में लगाना, जिम से वैसे थक के आ रहे हो भी नीचे आना। और मुझे याद है, मतलब बाई चांस हमारा ना थोड़ा खाने पीने का मैं शौकीन हूँ, तो जैसे आज कुछ ज़्यादा खा लिया तो कल मैं चंदीप जिम में निकाल लेंगे। मुझे अभी भी याद है, जिससे इंटेंस में ट्रेनिंग करता ना, आई यूज टू लूज, अगर जिम में 1 से 1.5 घंटा मैं लगा रहा हूँ, 2 से 2.5 किलो मेरा उसी टाइम उतर जाता था, कि वाटर वेट तो हो गया गायब, की वाटर वेट तो है ही नहीं, उसके बाद मास वेट भी उतर रहा है। ठीक है, चंदीप उतर गया, थके हारे पूल में घुसे, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, फिर 6 महीने बीते। 6 महीने के बीतने के बाद ऐसा हुआ कि जो जिम के टॉप, मतलब बड़े अच्छे स्विमर्स थे ना, वो भी खींच के 60 लैप्स जाते थे। 6 महीने के बाद आई यूज टू डू 160 लैप्स। वो 60 लैप्स मैंने उसमें 100 और प्लस किया। 160 लैप्स जो 4 से 5 किलोमीटर स्विमिंग होती है। मुझे नहीं लगता किसी ने स्विमिंग की है यहाँ पे, क्या जिनको जो स्विमिंग करते होंगे उनको आइडिया होगा कि स्विमिंग में सबसे ज़्यादा पावर भी लगती है और सब कुछ लगता है। तो 160 लैप्स में कर रहा था डेली। तो 160 लैप्स पे मैंने वैसे ही जनरली 50 मीटर की और 100 मीटर की टाइमिंग ली। तो जो पैरा स्विमर से हमारा पैरा नेशनल चार्ट था, मैंने वो निकाला। टाइमिंग्स ना मैच कर रही थी हल्की हल्की।
मैं ठीक है चंदीप अभी रेस्ट पे ही है, नेशनल आ रहा है, दे स्टेट और जा। तो कोच से बात की, मैंने कहते दे दे स्टेट, कोई बात नहीं। स्टेट दिया, क्वालिफाई करके नेशनल्स के लिए चले गए। पहला नेशनल लगने से पहले वो आ गया कोरोना महाराज, पूल बंद, सब बंद, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जिसने सबसे लास्ट में पूल्स खोले थे अपने, पता नहीं लगता सारी इन्फेक्शन पूल में से निकलनी थी। तो वो लास्ट मुझे याद है, सबसे सबसे लास्ट में हमारे पूल खुले। उस साल नेशनल कैंसिल हो गया, उन्होंने 21 में रीशेड्यूल किया मार्च में। मैं साउथ वालों के लिए ठीक है, वेस्ट वालों के लिए भी ठीक है, नॉर्थ वाले कहाँ जाएं क्योंकि पानी ठंडा। जम्मू कश्मीर में उस टाइम हीटेड सिस्टम नहीं था। तो यार डरता डरता जनवरी, आई गेस 26 जनवरी को आई वॉज एट राजभवन, जो हाईटी होती है वहाँ पे था, और 27 जनवरी शाम को मैं पूल में था वापस, ठंडे पानी में। मैं चंदीप देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। तो ठंडे पानी में 2 महीने मैंने ट्रेनिंग की है, मुझे याद है 2 महीने खाली मैं, मेरे साथ एक मेरा मेंबर और एक कोच होता था। पानी में कोई ना उतरे, ना कोई पानी में आए, सारे जिम करके निकल जाए। मैंने चंदीप नेशनल करना तो ट्रेनिंग करके जानी पड़ेगी, क्योंकि वो 6-6 महीने से लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पूल जल्दी खुल गए। तेरे पास यही लास्ट 40 to 45 डेज है, इसमें कर ले। किया हल्के हल्के, क्योंकि ठंडे पानी में ज़्यादा रहने नहीं होता। ठंडे पानी से जैसे निकले फिर जल्दी जल्दी अपने आप को स्टीम सोना करके कि ज़्यादा असर ना पड़े। वेंट फॉर द नेशनल्स, 50 मीटर बैक स्ट्रोक में पार्टिसिपेट किया, 100 मीटर बैक स्ट्रोक में पार्टिसिपेट किया, एंड बिकेम द फर्स्ट स्विमर फ्रॉम जम्मू कश्मीर जिसका नेशनल में ना मेडल आया था, जब से स्विमिंग स्टार्ट है जम्मू कश्मीर की। वहाँ से वापस आए, बाद में साथ में अवार्ड्स वगैरह और ढेर सारे चल रहे थे, कभी कहीं। तो उसके बाद वापस आने के बाद क्या हुआ, आई गेस अपने हफ्ते की मैं ब्रेक लेता हूँ कि हफ्ते के बाद चंदीप दबा ले अच्छे से, क्योंकि मुझे याद जब मैं टूर्नामेंट खेलता हूँ ना, 1 से 2 महीने पहले मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि चंदीप ना ये करना है ना वो करना है, जितनी अवॉइडेबल थिंग्स है मैं सारा कुछ अवॉइड करता हूँ। तो आके हफ्ता एक दबा के खाना, सब कुछ करना, फिर हफ्ते के बाद ट्रेनिंग वापस स्टार्ट। मैं चंदीप अब बैक स्ट्रोक सीख ली है, कोशिश कर बाकी भी सीख ले। फ्री स्टाइल शुरू की, फ्री स्टाइल सीखी, बटरफ्लाई सीखी, ब्रेस्ट सीखी। हमारे में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट सीख ली मैंने। सो अगले नेशनल्स आए, फिर स्विमिंग टाइक्वांडो के साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप ना हर 2 साल के बाद एक बार ही होती है। तो उसी साल क्योंकि 20 वाले नेशनल स्टार्टिंग में हुए, तो 21 वाले साल के एंड में होने थे वापस। तो उसके लिए हम मैक्सिमम 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्विमिंग में। मतलब आपको अगर 4 स्ट्रोक आती हैं बट आप पार्टिसिपेट 3 में ही कर सकते हो, कोई भी उठा लो इवेंट्स। तो मैंने बोला चंदी पिछली बारी 2 में किया था, इस बारी 3 में करते हैं। अपने लिए बैक स्ट्रोक के दोनों भर दिए, क्योंकि मेरे मेडल इवेंट्स थे वो, और साथ में इस बारी पंगा ले लिया मैंने बटरफ्लाई का, कि बटरफ्लाई में पार्टिसिपेट करते हैं। बटरफ्लाई सीखी, बटरफ्लाई में पार्टिसिपेट किया, गया फिर से नेशनल, गुवाहाटी में नेशनल हुए थे हमारे, और उस साल 6 से ज़्यादा मेरे को 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया। तो पहला स्विमर बना मैं जम्मू कश्मीर में जिसके नेशनल में 5 मेडल आए। वो आने के बाद आई वेंट अगेन फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ट्रेनिंग स्विमिंग रोकी, एक तो मैंने पंगे इतने लिए हुए हैं ना, कभी इस स्पोर्ट्स में कभी उस स्पोर्ट्स में, मैनेज करना मेरे लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर टूर्नामेंट एक साथ आ जाए, सुबह स्विमिंग चल रही है, शाम को टाइक्वांडो चल रहा है, मेरे साथ ऐसे हो जाता है कभी कभी। ये छोड़ा था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए चले गए हम, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने चले गए, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप टूर्नामेंट खत्म हुई एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन पैरा टाइक्वांडो एथलीट जिसके 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में 2 सिल्वर मेडल थे, एंड बिकेम द वर्ल्ड वाइस पैरा टाइक्वांडो चैंपियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री। लेकिन एक आपको मैं इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इतनी डोज ऑफ इंस्पिरेशन लेकर कहाँ से आते हो आप? क्योंकि होता क्या है नॉर्मल लाइफ में, जैसे बच्चों से मैं काफ़ी इंटरेक्ट करता हूँ, कभी कोई कहता है जी आज तो मेरे को 99 के करीब फीवर हो गया, मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगा या आ पाऊँगी, लेकिन आप बैक टू बैक सर्दियों में स्विमिंग कर रहे हैं, टेक्वांडो कर रहे हैं, कोरियंस को हरा रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, ये रेगुलर कहाँ से आ रही है इंस्पिरेशन की डोज? थोड़ा उसका हम सबको भी एक बार बताएं, जिससे कि एटलीस्ट वी विल बी एबल टू डू समथिंग, जो आप इतना कुछ कर रहे हो उसमें से। मेरे हिसाब से ना एक चीज़ होती है, इफ़ यू एम हाई ना, अगर आपके ड्रीम्स उस चीज़ को टच कर रहे हैं ना, कि जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, तो स्पोर्ट्स को मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, गोल्ड। तो स्टडीज़ की बात की जाए, 10th अच्छे मार्क्स से पास कर ली, 12th भी अच्छे मार्क्स से पास कर ली, इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रिकल में की है, वन ऑफ द टफेस्ट फील्ड्स कंसीडर की जाती है, वो भी बिना हाथों के, क्योंकि बिजली से प्यार तो शुरू से पड़ गया था 2011 से।
तो मैं चलो बिजली ने थोड़ा प्यार हमें दिया, हम थोड़ा उनको भी दे लें। तो इंजीनियरिंग भी टाइम पे 4 साल के अंदर कंप्लीट करके मैं पास आउट होकर निकल गया। बट मेरे हिसाब से वो मैं कहीं पे भी जैसे कहीं पे भी जा रहा हूँ या कभी कुछ भी कर रहा हूँ ना, एक ही हमेशा मोटिवेशन होता है कि आती कहाँ से है। तो मेरे हिसाब से जो मोटिवेशन आप ना अगर किसी से ले रहे हो, दैट इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम। क्या वो खाली थोड़े टाइम, अगर ये जितने यहाँ पे सुन रहे हैं ना, आधे तो यहाँ से बाहर निकलने से पहले भूल जाएंगे, आधे शायद से क्लास तक याद रख लेंगे, एक आधा होगा जो घर लेके जाएगा, बट वो भी 1-2 दिनों के बाद वो भी भूल जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था। बट जो अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप को रख सकता है ना, कि अपने आप को हमेशा पुश करना कि हाँ संदीप करना है करना है करना है। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं खाली नेशनल्स के लिए देख रहा होता तो मैं स्टेट को क्वालिफाई भी ना करता। मैं जब भी पूल में कदम रखा था ना, पूल में कदम रखने से पहले नेशनल्स को देख रहा था मैं कि अगर रख रहा है तो ठीक है। अगर मैंने टाइकोंडो शुरू की थी ना, वो शुरू करने से पहले मैं इंटरनेशनल देख रहा था कि संदीप इसमें इंटरनेशनल लगाना है। तो हमेशा मेरे हिसाब से सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बात करूं अगर मुझे कभी भी, क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट अ मंडे, हर दिन हमारा सेम नहीं रहता। हमारी ज़िंदगी में भी ऊपर नीचे चलता रहता है कि आज हम पॉजिटिव हैं, कल को क्या पता मैं नेगेटिव हूँ थोड़े समय के लिए। बट जब वो नेगेटिविटी मुझे हिट करती है ना, तो मैं अपने आप को स्पोर्ट्स में वापस हिट करता हूँ कि कितनी जल्दी मैं अपने आप को स्पोर्ट्स में वापस फेंक सकूँ। अगर पूल का टाइम हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, चल संदीप उठा झोला चल जा पूल में, पानी में क्या ही कर लूँगा ज़्यादा, एटलीस्ट ट्रेनिंग तो हो रही है ना बॉडी की, बॉडी चल तो रही है। और मेरा ना थोड़ा कनेक्शन है अपने सिख हिस्ट्री से भी थोड़ा। तो जो सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेटिंग जो लाइफ जर्नी लगती है, दैट इज़ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। कि उनकी लाइफ से अगर मुझे उनकी लाइफ, जो उनके बच्चों की लाइफ रही है, जो उन्होंने इतना कुछ अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए इतना कुछ किया, तो उनकी हर दिन की लाइफ में से ना कुछ मोटिवेशन मिलती है। और रेस्ट फैमिली और फ्रेंड्स तो हैं ही, जो धक्का दे के रेडी, चलो भाई क्या हो गया, ये होगी चीज़, धक्का मारते हैं। जो टूर्नामेंट मुझे खेलने का मन नहीं होता ना, वो धक्का मार के बेचते हैं, भाई जा खेल क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं जीतेगा, यही हो सकता है ना लास्ट मोमेंट, कोई बात नहीं तू खेल, हम साथ में। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो हमारा लाइफ का नेचर है ना, दैट इज़ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। तो ये जो दूसरा होता है ना, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, ये खाली बाहर चलता है, ये जिंदगी खेल में नहीं चलता। अगर जिंदगी में पॉजिटिव रहना है, अपना जो अराउंड सर्कल है ना, वो भी पॉजिटिव रखो। मेरा लिमिटेड सर्कल है, 1 हाथ या 2 हाथ की उंगलियों में आप गिन सकते हो, उससे ज़्यादा सर्कल मेरा बड़ा नहीं है। सोशल लाइफ मेरी बहुत बड़ी है, बट जो मेरी पर्सनल लाइफ के लोग हैं ना, वो लिमिटेड हैं। बट वो ऐसे हैं कि छान छान के बंदे हैं सारे, कि किसी को अगर मैंने फ़ोन कर दिया, मना तो कोई करेगा नहीं। कि अगर मुझे यहाँ जाना है, तो अगर 4 लोग हैं, चारों में से चारों रेडी हैं, फिर मुझे कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, मैंने सबको बोल दिया, लेके किसको जाऊँ। तो ऐसा सर्कल बनाओ कि आपको जो पुश करे, कि आपको मतलब एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट बट पॉजिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का ऐसा समय है कि 20 से 30 से 35 साल की उम्र में आपने अगर हार्डवर्क कर लिया, तो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ विल बी ईज, कि वो बाद की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर ये 10 साल आपने मज़े कर लिए, तो फिर बाद के 60 साल आप मेहनत करते रह जाओगे। संदीप जी, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और आपकी हर एक जो अचीवमेंट है, उससे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी निकलती है। एक इंसिडेंस आपका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में लोग काफ़ी देखते हैं और काफ़ी सराहते हैं, वो है आपका गाड़ी चलाने का। आप क्रेटा चलाते हैं, और जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में देख रहा था कि आप बेंगलोर तक ड्राइव कर चुके हैं क्रेटा। एक तो लाइसेंस बड़ा ज़रूरी रहता है जब भी किसी ड्राइवर को सड़क पे उतरना है। आपके लिए कितना बड़ा जिद्दोजहद थी एक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, और जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस मिला, वो अचीवमेंट क्या थी? ये कहानी भी शुरू होती है 2020 में, जब कोरोना आया ना, तो ये कहानी भी तब की शुरुआत है। क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी चीज़, मतलब कुछ मतलब छोटी जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, उसको छोड़ के मैं अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो चुका था। फ़ोन चलाने को हो गया, लैपटॉप चलाने को हो गया, लिखने को हो गया, पढ़ाई को हो गया, वो सारा कुछ मैंने अचीव कर लिया था। बट एक चीज़ में ना अभी भी डिपेंडेंसी थी। अगर मुझे कहीं पर जाना है ना, या तो दीदी को फ़ोन करूंगा, या तो पापा को फ़ोन करूंगा, या किसी दोस्त को बुलाऊंगा कि छोड़ा वहाँ पे, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये चीज़ अभी भी लाइफ में चल रही थी। तो कोरोना आया, सब बंद। 1-2 महीने 3 महीने अंदर बैठा, मन में ख्याल आया, संदीप थोड़े इसको ओवरकम करते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं। गाड़ी चलाने का मन मैंने बनाया, पापा को बताया। पापा ने ना जस्ट लास्ट ईयर क्रेटा ली थी मैनुअल में।
1 साल पहले उन्होंने गाड़ी ली। मैं पापा बेचो ये गाड़ी, एक नई गाड़ी लो, ऑटोमेटिक लेंगे। तो पापा पॉजिटिव थे, तो पापा ने मतलब थोड़ा सा डाउट तो सबको होता है कि अगर इतने पैसे 18-20 लाख इन्वेस्ट करना है तो अगर उसका रिजल्ट ही ना निकले तो क्या फ़ायदा। तो मैं उनकी मैनुअल गाड़ी में बैठ गया। मैं पापा कहते स्टेयरिंग ऐसे लाएगा, मैं ऐसे स्टेयरिंग होगा, ऐसे पैर होंगे। वो भी कन्विंस्ड हो गए। उन्होंने कहा ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, 18-20 ही जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो करेगा कुछ। तो उन्होंने गाड़ी ली। पहले दिन हम चले गए आरटीओ ग्राउंड, आई गेस आपने देखा होगा, जो हमारे वेब मॉल के बैक साइड में है। वहाँ पे पापा ले गए, पापा गाड़ी से उतर गए। पापा गाड़ी से उतर के कहते चला ले। मैं बताओ तो सही करना क्या है। कहते खुद चला, मैं बताऊंगा नहीं हो पाएगा। तो मुझे पहला दिन याद है, पापा मम्मी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो मैंने हल्का हल्का डरते डरते गियर डाला, गाड़ी से ब्रेक से पैर उठाया, चलानी शुरू की। तो पापा ने मम्मी को वीडियो कॉल की, देख तेरा बेटा गाड़ी चला रहा है। तो 2 राउंड मारे, 4 राउंड मारे, 6 राउंड मारे, फिर वहाँ से हम घर चले गए वापस। पहले दिन ये था। मुझे पता नहीं अपने आप में कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, मैं संदीप चला लेंगे गाड़ी। सेकंड डे मैंने पापा को घर पे रहने दिया, पापा घर रुको। मैं दीदी को ले गया साथ में। दीदी का लाइसेंस, पापा का लाइसेंस, मम्मी का लाइसेंस ऑलरेडी सबका बना हुआ था। मैं दीदी को ले गया। आरटीओ ग्राउंड में 2 राउंड मारे, मैं दीदी बाहर चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं। तो मैं सिद्रा हाईवे पे चले गया डायरेक्ट। सेकंड डे पे आई वाज ऑन द सिद्रा हाईवे। तो सिद्रा हाईवे से आया वापस, फिर 1 महीना लगाया। 1 महीने लगाने के बाद ना, क्योंकि इलीगली कोई काम करने का ना इतना वो नहीं होता, कल को कोई पकड़ लेना वो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है मेरे लिए भी और उनके लिए भी, कि इस पे एक्शन क्या हो सकता है या क्या कार्रवाई की जाए। वो भी एक बारी कार्रवाई करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि करनी तो उनको भी पड़ेगी। तो मैंने बोला चलिए लाइसेंस बना लेते हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे चेक किया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वहाँ पे ना एक क्लॉज है हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट है ना, कुछ कैटेगरीज डिफाइन की जिसमें आपको लाइसेंस मिल सकता है। सिंगल आर्म के लिए है, डबल लेग्स अगर नहीं है उसके लिए लाइसेंस भी है, बट डबल आर्म के लिए ना उन्होंने क्लॉज ऐड किया था, कैन बी कंसीडर्ड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस, कि अगर आप इसको स्पेशल केस बना के कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज अ नो। ऑनलाइन अप्लाई किया उस टाइम, वहाँ पे जाकर ट्राई, वो जो ऑनलाइन टेस्ट हो, लर्नर लाइसेंस टेस्ट होता था ना, वो भी आरटीओ ऑफिस में होता था। मेरी लर्नर लाइसेंस टेस्ट की डेट पड़ी 1 महीने बाद की। वहाँ पे हमारा कोई स्पोर्ट्स वाले लगे हुए थे, तो पापा ने बोला कि अगर 1 दिन में हो जाए तो कहते आरटीओ साहब कर सकते हैं, अगर 1 दिन में करना चाहें तो वो कल को भी वो उसको एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करके कल को करवा सकते हैं लर्नर्स का। हमारी गलती वही होगी कि हम उनके पास चले गए सामने। ठीक है, तो वहाँ पे गए, किस्सा सुनना बड़ा खतरनाक है। तो वहाँ पे गए, हम आरटीओ साहब से मिले। आरटीओ साहब से मिलके ऐसा लगा कि इन जैसा पॉजिटिव ऑफिसर है ही नहीं कोई। संदीप जी, आरटीओ ऑफिस आपको पूरा सपोर्ट करेगा, खाली आप ये हल्का सा मेडिकल बना के ले आओ। उस टाइम तक लोग ठीक है जान रहे थे, मेरे को पता था लोगों को, ठीक है। आई वेंट टू द मेडिकल, सरवाल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया। तो उन्होंने मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं बताया था कि किसका मेडिकल होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए। उन्होंने किया कि एक एमएस के साइन हुए, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के हुए, कि इसके जो लोअर लिम्स हैं दैट इज टोटली फंक्शनेबल। लास्ट में आरटीओ डिसाइड करेगा कि ड्राइविंग कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि ये डॉक्टर्स का काम नहीं है डिसाइड करना। मैं अगले दिन लेके उनके ऑफिस में पहुंच गया, मैं सर मिल गया ये लो। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, कहते मेडिकल बोर्ड का लेके आओ 5 डॉक्टर्स का। उस टाइम मेरे को थोड़ी सी खुंदक तो आई, मैं ठीक है चंदीप कोई नहीं, शांति रख। फिर वापस आए, अगले दिन मैं जीएमसी पहुंच गया, प्रिंसिपल सर से मिला या किसी से मिला, उनको रिक्वेस्ट की मैं सर मेडिकल बोर्ड बिठाइए जहाँ पे 5 डॉक्टर्स बैठते हैं। तो उनको मैंने वो दिखाया मेडिकल, तो यही लिखना था वापस कि ऑब्वियसली उन्होंने भी यही लिखना है कि लोअर लिम्स टोटली फंक्शनेबल है, बाकी एम्प्यूटेशन है दोनों आर्म्स की, रेस्ट आरटीओ डिसाइड करेगा कि गाड़ी चला सकता है नहीं चला सकता। हफ्ता लग गया, 5 डॉक्टर्स ने भी साइन कर दिए, तो वो भी मिल गया मेरे को, मैं वो भी लेके चले गया। अब वो ऑफिसर ना नीचे से ऊपर जा रहे थे उस टाइम के, तो जस्ट ऑफिस में आए होंगे, मैं बाहर ही खड़ा था। उन्होंने मतलब मैंने उनको दिखाया सर ये मेडिकल बोर्ड है, तो ये मेडिकल बोर्ड का भी हो गया, आप देख लो एक बारी। 3 से 4 बारी ऑलरेडी मैं मिल चुका था। पता नहीं कौन से मूड में जनाब आए थे, मेरे को भी नहीं पता, या तो घर से लड़के आए थे या रास्ते में कुछ पंखा हो गया था उनका। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, मैं हैंडीकैप को लाइसेंस नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लो। मुझे बात पिंच होगी, क्योंकि उन्होंने बोला पब्लिक में। रात को मैं मीडिया के आगे, मैंने रात को मीडिया में आके बोल दिया, मैं मुझे किस बात का डर, अभी लाइसेंस थोड़ा ना मिला, मैंने मीडिया में आके बोल दिया। तो वो इशू थोड़ा हाईलाइट हो गया। तो अब कोई उनके फिर वाकफ बीच में पड़े, तो उन्होंने बोला अब तो इशू हाईलाइट हो गया, अब तो वैसे भी नहीं हो सकता। मैं ठीक है मत करो।
मैंने थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि मुझे पता था गवर्नमेंट में ना क्लॉज है, अगर क्लॉज है तो कर सकते हैं, ऑफिसर दम रखना है, ऑफिसर में दम होना चाहिए कि, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स कोई चीज करनी है ना उसमें हिम्मत चाहिए होती है कभी कभी। इफ पॉजिटिविटी है तभी वो हो सकता है, अदरवाइज कोई नई चीज करने के लिए आपको पता है कि अगर नया रास्ता बनाना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ती है। ठीक है, वेट किया, 6 महीने 7 महीने बीते थे, आरटीओ से ट्रांसफर हो गए, नए आरटीओ आए, उनसे जाके मिला, नहीं हाँ इससे पहले एक और कहानी है, उन्होंने ऐसे तो वर्बली रिजेक्ट किया, उन्होंने पक्के तौर पे कागजी रिजेक्ट भी किया मेरे को। उन्होंने अपना बोर्ड बना लिया जिसमें खुद बैठे, 3 ARTOs बैठे, 2 मेडिकल डॉक्टर्स बैठे, और साथ में उन्होंने बिठाए शायद से 3 इंस्पेक्टर्स बिठाए थे। चेयरमैन तो बोर्ड के चेयरमैन सर खुद बनेंगे कि बोर्ड का चेयरमैन मैं हूँ, बाकी मेरे मेंबर्स हैं सारे। डॉक्टर्स को मैंने वो मेडिकल दिखाया, जो डॉक्टर्स 2 वहाँ पे आए थे, कहते सर ये डॉक्टर्स का इससे बड़े हम भी नहीं है, क्योंकि ये 5 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड है, ये सबसे बड़ा होता है। तो चेयरमैन अगर बोर्ड का रेडी नहीं है ना, मेंबर्स जितना मर्जी हाथ पैर मार लें, आप कन्विंस नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे को कागजी कार्रवाई पे भी रिजेक्ट कर दिया, ना ट्राई ली गई ना कुछ किया गया। मैं ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं कोर्ट केस के लिए तैयार था कि कोर्ट केस करूंगा। मैं कोई नहीं, वेट हुआ 2 महीने, फिर वो ट्रांसफर होगी, नए आए, वो पता नहीं हल्के से मेरे को वो भी थोड़े पॉजिटिव लगे, तो वो पॉजिटिव लगे, बट उनसे भी नहीं हुआ, मतलब उनके होते होते वो काम, वो उनकी ट्रांसफर होगी बीच में। फिर एक ग्रुप आया, मतलब फिर समय बदला, मतलब पेशेंस ने की होती है, समय बदला, पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आरटीओ नए, ARTO नए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नए, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वो भी नए आ गए। उस टाइम तक ना मैं ऊपर तक पहुंच चुका था, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट के पास, जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी होते हैं उनके बाद सीधा ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन होती है टॉप वाली। तो वो पॉजिटिव थे, उन्होंने बोला संदीप अप्लाई करो, अगर चेयरमैन बनना होगा मैं खुद चेयरमैन बन के मैं खुद साइन करूंगा उस पर, अगर आपने ट्राई पास कर ली हो जाएगा। मैं चलो शुक्र है, खत्म हुआ ये काम। इतनी देर 1.5 साल बीत चुका था, जैसे वो पॉजिटिव हुए उनकी ट्रांसफर होगी। तो जाए मैंने सबको जाके हल्का हल्का सबको बताना शुरू किया कि ऐसा, हल्के हल्के सारे पॉजिटिव किया। अभी आरटीओ सर के पास में गया ही नहीं, पहले मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर के पास गया, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास गया, ARTO मैम्स के पास गया, मैंने वो सारे पॉजिटिव किए पहले। मैं सर हो सकता है, तो TC सर को मैंने बताया, TC सर ने अपने PA को बुलाया, 3 साल बीत चुके हैं अभी तक, उन्होंने बुलाया कि चेक करो ये केस हो सकता है या नहीं हो सकता। उन्होंने शायद से 2 या 3 दिन के बाद मुझे कॉल आता है, चंदीप आपकी वेडनेसडे को ट्राई है, नगरोटा ग्राउंड आ जाना। मैं ठीक है सर, कितने बजे? कहते 2 बजे आ जाना। तो वहाँ पे RTO सर भी आए, उनको भी केस पता चल गया था, तब तक उनको बता दिया था। तो ये केस हुआ था, मैंने किसी के थ्रू भी उनको बुलवाया था, तो वहाँ पे मैं ट्राई देने गया, सारी ट्राइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, खाली एक चंदीप सिंह वहाँ खड़ा है। वहाँ पे सामने 3 इंस्पेक्टर्स हैं, ARTO मैम खुद हैं, RTO सर खुद आए, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर खुद आए ट्राई लेने के लिए। पहली ट्राई हुई मेरी, वो जो आजकल SC शेप बनाते हैं वो ट्राई हुई, पास। नहीं संतुष्टि हुई, ग्रेडियंट टेस्ट करवाया, पास। नहीं संतुष्टि हुई, वो सारे गाड़ी में बैठे सारे गाड़ी में बैठे, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर गाड़ी में, पीछे सारे गाड़ी में बैठे हुए हैं, ARTO मैम, RTO सर और इंस्पेक्टर सर। वीडियो फुटेज बन रही है। तो मुझे उन्होंने पूरे पहले नगरोटा हाईवे घुमाया, नगरोटा हाईवे घुमा के आगे सिदरा वगैरह घुमा फिर आके फिर वापस लेके आए। उन्होंने वहाँ पे गाड़ी पार्क करवाई। RTO सर ने बोला, मैं आज भी मन से आया था कि अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा मैं लाइसेंस नहीं दूंगा। उन्होंने ये मुझे चीज़ बोली कि आज भी अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होता मैंने लाइसेंस नहीं देना था। और कहते कि इतने इंडिकेटर हम नहीं देते जितने तूने दे दिया आज। तो शाम को मुझे मैसेज रिंग होता है कि योर ट्राई हैज़ बीन पास्ड। 4 साल लग गए मेरे को लाइसेंस लेने के लिए। तो जैसे ही लाइसेंस मिला, मैं चंदीप अब तो खुली छूट मिल गई है, पहले छुप छुप के चलानी पड़ती थी, तो अब तो लाइसेंस भी है, सब कुछ है, तो खुली छूट थी अब। तो पहली ड्राइव की मैंने जम्मू टू लद्दाख, जम्मू टू लद्दाख, लद्दाख टू नुब्रा, वहाँ से वापस आए जम्मू टू बेंगलोर, 3000 किलोमीटर कुछ का सफ़र है। वहाँ से फिर हम चले गए हजूर साहिब, हजूर साहिब से वापस फिर एक बारी जम्मू पहुँचे, जम्मू से पहुँच के अगले साल फिर लद्दाख। अभी प्रोग्राम बन रहा था यूके का, बट वो थोड़े कुछ कारणों की वजह से कैंसिल हो गया। तो बट ये है कि जो कर सकते हैं वो करेंगे। बहुत ही मोटिवेशनल है। 2 चीज़ें इसमें से मेरे को जो निकल कर आती है, एक तो कंसिस्टेंसी, आप में एक कंसिस्टेंसी शुरू से है कि अगर स्पोर्ट्स में गए तो स्पोर्ट्स में जब तक चीज़ अचीव नहीं कर ली तब तक आप थके नहीं। वैसे ही स्विमिंग में और वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस में
लेकिन दो लोगों को बीच में मैं बहुत ही पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहता हूं। एक आपके फादर साहब को, आई थिंक पूरी आपकी डिस्कशन में उनका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नई गाड़ी बेच के आपके सपनों के लिए उन्होंने ऑटोमेटिक क्रेटा ली। हैट्स ऑफ टू हिम एंड फॉर आई थिंक ही इज ऑल्सो ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ा रोल है उनका। वही है ना, बेसिकली जो मैं फ्रंट में कर रहा हूँ ना, उसके पीछे एक बोन खड़ी है, बिल्कुल, जिसमें मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर द वन जो पुश करते हैं आगे करने के लिए कि अगर कुछ सोच रहा है तो ये कर, इनको भी पता है कि ये कर लेगा, कुछ तिगड़े में लगा लेगा, बट कर जरूर लेगा। तो वो भी उसमें पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ ठीक है, कर रहा है, करने तो क्या ही हो जाएगा। और दूसरा, आपने एक जो पाथ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अगर कोई आपको देखता है बहुत क्लोजली, आप एक फर्स्ट है जिन्होंने गाड़ी जो है चलानी शुरू की। गाड़ी चलानी शुरू की तो आपने पाँव की मदद ली, आपको लाइसेंस मिला, चाहे 4 साल के बाद मिला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मार्च 2024 को आपको लाइसेंस इशू हुआ। ये सारी चीजें जो आपके बाद के लोग हैं उनके लिए आपने एक ऐसा रास्ता खोला है। इंस्पिरेशन तो है ही है, कहीं ना कहीं आप पॉलिसी चेंज मेकर भी हैं। हैट्स ऑफ टू यू फॉर क्रिएटिंग दैट पाथ। और जो लोग सोशल मीडिया पे इनको गाड़ी चलाते देखेंगे, आप भूल जाएंगे पठान को, आप भूल जाएंगे सलमान खान को। द वे ही ओपन्स द गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, जिस स्टाइल से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, जैसे गाड़ी में बैठते हैं और जैसे गाड़ी ड्राइव करनी शुरू करते हैं, आई थिंक दैट्स रियली एन इंस्पिरेशन। और आप सबके लिए एक और विच इज अ सरप्राइज कि हमारे चंदीप जी ने पिक्चरों में भी काम किया है, क्योंकि हीरो तो हैं ही, लगते भी हीरो हैं। एंड ही हैज वर्कड इन पंजाबी मूवी एंड पॉसिबली काफी और मूवीज में भी आगे हम इन्हें देखेंगे। खाने पे आते हैं थोड़ा, बहुत हमने स्पोर्ट्स पे कर लिया। इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सुबह सुबह आलू के परांठे, वो आपने खाने हैं, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप एक फूड ब्लॉगर भी हैं, तो थोड़ा फूड ब्लॉगर के बारे में आप बताइए कि हाउ इट स्टार्टेड और कैसे आपको ये एक गुड वाइब्स और गुड फीलिंग देता है। क्या कहते हैं उसको, मतलब मैं फूड ब्लॉगर नहीं, मैं एक तरीके का ना मिक्स ब्लॉगर हूँ। मैं सारा कुछ कर लेता हूँ, मतलब जो जो कर सकते हैं मैं सारा कुछ कर लेता हूँ, बट मेन फोकस फूड पे रहता है हमारा। तो खाने पीने का शौक स्टार्टिंग से था। आलू के परांठे हो गए, राजमा चावल हो गए, मम्मी की, मतलब अगर मैं टूर्नामेंट में जाता हूँ ना, तो टूर्नामेंट में ना एक वर्ड सुना आपने, फाके लग जाते हैं कभी कभी। बिल्कुल, कि कभी कभी ना भूखे रहना पड़ जाता है, क्योंकि टर्की चले गए, साउथ उन साइड्स पे, कोरिया चले जाओ तो हमारे लाइक का खाना ही नहीं है, हम दाल चावल खाने वाले। वहाँ पे पता नहीं केंकड़े कुंकड़े पड़े होते हैं, कभी कुछ बड़ा होता है। तो वहाँ पे ना हमें कभी चावलों पे जीना पड़ता है, कभी आलू पे जीना पड़ता है। बेशक लेविश बुफे लगा हुआ है इतना बड़ा, बट उसमें से खाने की आइटम हमारे पास 1 या 2 होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2021 की बात है, मैं टर्की गया, इस्तांबुल, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी मेरी। मुस्लिम कंट्री है, तो जितना फूड था सारा मीट बेस्ड था। वहाँ पे गए, हमने देखा खाने लायक हमारे कुछ नहीं, एक चीज़, चावल और पता नहीं आलू कैसे बना लेते थे। वो आलू भी उनके कोई पता नहीं केड़ी रेसिपी उन्होंने बनाई थी। मैं 3 दिन, आई गेस 10 दिन हम वहाँ पे रहे, 9 दिन मैंने वही खाया, क्योंकि मुझे थोड़ा अपनी डाइट का भी ध्यान रखना था। और एक दिन पहले ना हमारे वेज होते हैं वापस, हमें वेट होता है वापस कि हमने जो यहाँ से वेट लिख के भेजे हैं वो वापस वैसे हैं भी या कि नहीं है। मैं खेलता हूँ 80+ कैटेगरी में। एक दिन पहले मैंने रैंडमली, पता नहीं रब ने साथ दिया क्या किया, मैं खुद वेट करने चला गया अपना कि वेट कितना आ रहा है। 84-85 मैंने यहाँ से भेजा था, वो घट के 80.900 ग्राम्स रह गया था। मैं कल तक ही अगर 900 ग्राम भी गया तो संजीव डिस्क्वालीफाई है। तो फिर रात को पानी की बोतलें भरी, उसमें डाला इलेक्ट्रा पाउडर्स, मतलब 2, 3, 4, 6 लीटर पानी मैंने रात को पिया। सुबह 2 लीटर पानी पी के गया। वो बेचारा वेट लेने वाला हैरान परेशान हो रहा है, ये वेट आ कहाँ से रहा। उसने मेरी सिर पे, मैंने कैप डाली थी, तो हमारे कपड़े भी नहीं होते ऊपर, तो वेट जब होता है, तो उसने खाली कैप थी और वेट हो रहा था मेरा। वेट आ रहा है 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इतना मैंने वेट वापस बढ़ा लिया पानी के साथ। वो देख रहा है क्या, हाउ कि वेट आ कहाँ से रहा है। फिर उसने कैप उतरवाई, कैप उतरवा के 100 ग्राम का फर्क पड़ा होगा मैक्सिमम, तो वेट आ गया, मैं बच गया। उसके बाद वो फिर से वेट मेरा कम हो गया, बट एटलीस्ट टूर्नामेंट मैंने खेल ली।
तो वही होता है वो चीज़ें। फिर जब वापस आता हूँ मम्मी को पहले फ़ोन आता है, मम्मी आज राजमा चावल पनीर बना के रखना, मैं जम्मू पहुँच रहा हूँ। तो बाकी बात ही बाद में देखे जाएंगे, पहले राजमा चावल खाए जाएंगे, फिर आलू के परांठे खाए जाएंगे। खाने के शौकीन एक तो पंजाबी, ऊपर से खाने के शौकीन जम्मू वाले वैसे ही हैं। तो उसका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था, तो मैं सोचा अगर खा ही रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह ट्राई करते हैं, क्यों ना सबको बताई जाएँ। बट मेरी एक चीज़ है कि मैं थोड़ा किसी को ना बैड रिव्यू कम देता हूँ। मतलब अगर मेरी आप वीडियोस उठा के देखोगे ना इतना, क्योंकि उन्होंने हमें तो बुलाया नहीं भाई हमारा रिव्यू करवा के, हम खुद खाने के लिए गए, तो मेरा वो रहता है कि ठीक है पॉजिटिविटी थोड़ा पॉजिटिव ही करो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि नेगेटिव 2-3 बारी बोला, तीसरी बारी किसी ने अंदर नहीं घुसने देना कि नहीं जी इनको नहीं आने देना, बाकी जिस मर्जी को बुला लो। तो बस वही शौक में स्टार्ट किया था, तो अब वो टचवुड ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया। और जैसे कि हमने पहले भी कहा, आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वी कॉल इट एज ए मिडास टच। आप हर चीज़ को, मिट्टी को भी सोना कर देते हैं। टेक्वांडो के अंदर 9 पैरा के अंदर पैरा ओलंपिक्स या पैरा जो गेम्स थी आपकी एथलेटिक्स में, उसमें आपने इतने इनाम जीत के जम्मू और देश का नाम काफ़ी रोशन किया। इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिलते हैं, और जब आपने देश का कोट पहना तो उस समय की आपकी फीलिंग क्या थी? जब वो कोट को पहनना और महसूस करना बहुत ही विरले, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है, आप उनमें से एक हैं। मैं अगर आपसे बात करूँ ना, दैट फीलिंग कैन नॉट बी शेयर्ड, कि वो ऐसी फीलिंग है कि आप उसको ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि जिससे वो इतने खुश होते होंगे, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी को कि वो खुशी क्या है। वो बता सकते हैं कि दे आर इन द मूड ऑफ जॉय, दे आर इन द मूड ऑफ की प्राउडनेस या कुछ भी आप कह लो, बट वो उस चीज़ को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो क्योंकि सपना इस चीज़ का देखा था कि ये चीज़ करनी है, और 2018 में जब वो पूरी हुई तो मतलब दैट वॉज एन मोमेंट, कि वो एक ऐसा मोमेंट था। और जब आप पोडियम पे खड़े होते हो एंड नेशनल एंथम बजता है, तो दैट इज एन मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी ऑल्सो, फॉर माई फैमिली ऑल्सो, एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो, कि वो प्राइड की मोमेंट रहती है। तो वो एक्सप्रेस तो हो नहीं सकती, बट इट इज़ अ मोमेंट, मज़ा आ जाता है। बहुत बढ़िया, आपने हमारा नाम काफ़ी रोशन किया है। अब हम अपने इस डिस्कशन के आखिरी चरण पे हैं। यहाँ पे इतने ब्राइट बच्चे बैठे हैं माइट के, और हम सब जो आपसे इंस्पायर होते हैं, कोई ऐसा मैसेज हम सब के लिए कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें, कैसे छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलकर एक बड़े सपने की तामीर करें, वो अगर आप हम सबको देना चाहें तो हमें लगेगा कि आज का दिन फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है। एक चीज़ होती, 3 चीज़ें बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ होती है बिलीव करना, कि अगर आपने मन में ठाना है या दिमाग में आपने उस चीज़ को लाया है कि वो चीज़ आप कर सकते हो, तो फिर उसके बाद आपकी बॉडी ना उस हिसाब से थोड़ी सी बिहेव करना शुरू होती है। तो जब एक बारी मन में आ गया, बॉडी ने हरकत शुरू की, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अचीव होना शुरू होती हैं। तो बिलीव करना अपने आप में, अपने माइंड में उस चीज़ को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके लिए वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके जो आप काम कर रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, तो उसके लिए अगर आपको, मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, मुझे पता है, और जम्मू यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स दे के अच्छे नंबर लेना सौखा नहीं है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में से अगर एग्ज़ाम्स दिए, मैंने क्वालिफाई किया, बट मुझे पता था कि अगर मैं लास्ट का 1 महीना पढ़ रहा हूँ ना, फिर उसमें वो 16 घंटे 18 घंटे नहीं देखे जाते, उसमें देखा जाता है कि कंप्लीट कब होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में 5 महीने स्पोर्ट्स में देने, 1 महीना मुझे पता है मैंने पढ़ाई में देना है, बट वो जो 1 महीना पढ़ाई में देना है उसमें फिर 16 घंटे 18 घंटे होंगे। उसमें ये नहीं होगा कि आधा घंटा पौना घंटा पढ़ लिया पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो जितना आपको टाइम देना पड़े आप उसमें डेफिनेटली टाइम दीजिए। पढ़ाई को लेके हो गया, स्पोर्ट्स को लेके हो गया, या किसी भी फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हो तो उसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। वो चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली अचीव होना शुरू होती हैं। लास्ट में सिर्फ एक कोट से ख़त्म करूँगा, सफ़र में सफ़र करना है या सफरिंग को एक हसीन सा सफ़र बनाना है, ये चॉइस सिर्फ आपके अपने हाथ में है। आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन बनाना है कि आपको उसको किस रास्ते पे लेके जाना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू चंदीप सिंह जी। वी आर रियली ऑनर्ड कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा आ रही हैं जी, समय कम है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, काफ़ी चीज़ें आप साथ में कर रहे हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रही। थैंक यू सो मच। आपकी पूरी जर्नी जब आप सुना रहे थे, एक और चीज़ भी आप में बहुत अच्छी है, जो शायद हमारे यहाँ पे बैठे हुए जो यूथ हैं, दे विल अलाइन मोर विद यू, सिंक मोर विद यू। आप बहुत अच्छे एक स्टोरी टेलर भी हैं,
क्योंकि कई लोग जिंदगी में अपनी अचीवमेंट्स को स्ट्रक्चरली नहीं बता पाते, आपने उसको बहुत अच्छे से बताया। शायद वही एक रीजन है कि जब आप आगे चलते जा रहे हैं, जो आपके फुटस्टेप्स हैं वो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन और एक पाथ बना के जा रहे हैं। आप खाली अपने लिए मेडल्स नहीं लेके आ रहे, आप एक सोच को बदल रहे हैं, एक समाज को बदल रहे हैं। Thank you so much. एंड चंदीप जी, अगेन वी आर ऑनर्ड that you have come here, spend time with us. Honor is mine to be here and अगर I hope कि यहाँ से एक लाइफ भी चेंज होती है ना, it will be great for me also. Right. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much.